Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the arrangement of the electrons in an atom. In the previous lecture, we have discussed about the definition of atom, element, compound, mixture, and after that, we have discussed about the representation of the element, which is called as the symbol. After that, we have discussed about the atomic number, the mass number, the atomic number, which are equal to the number of the protons or the number of the electrons in a neutral atom, while the mass number which is equal to the sum of protons and neutrons, so collectively called as the nucleons. After that, in today's lecture, we will discuss about the arrangement of the electrons in an atom. In the previous lecture, we have already discussed that an atom has mainly the two parts. One is the central part, which is called as the nucleus, as you can see in the diagram here also. See that particular diagram, the central part is the nucleus, the central part of the atom, that is the nucleus. Because that is the nucleus. And outside there are the circular path in which the electron revolves, These circular path called as the shell, or you can say the orbit, or you can say the electronic energy levels. Why the electronic energy levels? Because the electrons are moving in them, and all the electrons can never have the same energy. सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं हो सकती. फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है. सेकंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी एनर्जी उससे ज्यादा. थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा होती है. तो मींस ऑन दैट बेसिस द सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, क्योंकि इनके जो डिफर करते हैं आपस में, वो एनर्जी के बेसिस के ऊपर डिफरेंट शेल्स है, वो आपस में डिफर करती हैं. तो मींस अब हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट आर दीज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, या जो शेल्स हैं, या ऑर्बिट हैं, इन सभी के एक ही नाम है. तो आप इसे ऑर्बिट भी कह सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज द ऑर्बिट, और ऑल्सो कॉल्ड एज द शेल, या आप इसे शेल भी कह सकते हैं, पर यू कैन से द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स. सो व्हाट आर दीज शेल और द ऑर्बिट or the electronic energy levels? The circular path around the nucleus, in which the electron revolves, called as the shell, or the orbit, or the electronic energy level. जैसे आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ दिख रखा है आपने कि इलेक्ट्रॉनिक शेल, the electrons are arranged in the shells. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे अरेंज होते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ ले where the electrons are present, तो आप क्या लिखेंगे, the electrons are present in the shell. आपसे ये पूछ लिया जाए where the shells are present, तो आप यही बात लिखेंगे. देखो जो यहाँ पे लिखा है, electrons are arranged in shell and which are present around the nucleus. शेल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, the shells are present around the nucleus. क्लियर हो गया इतना. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, these shells are represented as n is equal to 1. जो सबसे पहली शेल है बेटा, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे n is equal to 1 से, n is equal to 1 लिखेंगे, स्मॉल n से आप रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट शेल. सेकंड शेल को आप रिप्रेजेंट करेंगे बेटा n is equal to 2 से, n is equal to 2 से आप रिप्रेजेंट कर देंगे. और जो थर्ड शेल है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे n is equal to 3 से. तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होंगी अलग अलग शेल्स की. तो n is equal to 2 आप लिखेंगे यहाँ पे, n is equal to 2. उसके बाद जो थर्ड शेल होगी उसको लिखेंगे n is equal to थर्ड शेल, n is equal to 3. So these are the different shells. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे आएगा हमारा कि जो ये डिफरेंट शेल्स हैं, जो अभी हमने आपको बताया, ये फर्स्ट शेल होगी, सेकंड शेल, थर्ड शेल, जो डिफरेंट शेल्स हैं जिनका देखो हमने यहाँ पे नंबर लिखा. तो ये जो डिफरेंट शेल्स हैं, इनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इनकी एनर्जी किसकी कम किसकी ज्यादा होगी. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सबसे फर्स्ट शेल है, कौन सी शेल बेटा, सबसे फर्स्ट शेल, द फर्स्ट शेल which is present closest to the nucleus will have the lowest energy. उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. Now the question arises, why the first shell has the lowest energy? It is the region because the electron which is present nearer to the nucleus, and the nucleus has the positive charge. हमने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर, why the nucleus has the positive charge? Because the nucleus contain the proton and the neutrons. जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर देखो बेटा, प्रोटॉन होता है which has the positive charge, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, which has the positive charge. Other species are the neutron
विच हैव नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड ड्यू टू दैट नाउ देयर अकर्स द अट्रैक्शन इन बिटवीन द positively charged nucleus and the negatively charged electrons, and during the attraction the energy releases, एनर्जी बाहर निकल जाएगी। जितनी भी एनर्जी थी उसमें से एनर्जी का कुछ पार्ट जब बाहर निकल गया तो एनर्जी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कम हो गई। तो मींस मोर द अट्रैक्शन मोर द एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी ज्यादा कब निकलेगी, when the first shell electron causes the attraction with the nucleus, जब पहली शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन करेगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। और अगर थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन देखो इसी टाइप से बेटा, अगर अट्रैक्शन करेगा न्यूक्लियस के साथ तो अट्रैक्शन विल बी लेस, because there is the more distance between the nucleus and the third shell electron। थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन कम, और अट्रैक्शन अगर कम तो एनर्जी कम बाहर निकलेगी, और एनर्जी बाहर कम निकली तो खुद की एनर्जी तो ज्यादा रह गई ना, तो इसलिए खुद की एनर्जी ज्यादा। तो वही हम बता रहे थे कि हमें यह देखना है कि कौन सी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जब होता है तो किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी जो कि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है। क्यों सबसे ज्यादा नजदीक है, तो उससे क्या होगा, when the electron is present more nearer to the nucleus means more attraction, more energy releases outside, so self energy will be less, और एनर्जी खुद की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। so that is the region जो हमने यहाँ पे लिखा है। देखो the first shell which is closest to the nucleus have the lowest energy। why the lowest energy, because the first shell electron causes much more maximum attraction with the nucleus, and due to that their energy becomes less। the further a shell which is away from the nucleus, which is present far away from the nucleus, will have the higher energy, will have the higher energy। तो अगर न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक शेल होगी उसकी एनर्जी सबसे कम, और जो शेल न्यूक्लियस से सबसे दूर होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ये बेसिक बात है, जो बेसिक टास्क है जो आपको ध्यान रखने हैं। और हर शेल के अंदर ऐसा नहीं कि जो न्यूक्लियस के बाहर, अब हम बात करेंगे बेटा अरेंजमेंट की कि किस शेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर शेल, बिकॉज शेल द फर्स्ट शेल द सेकंड शेल द थर्ड शेल, तो क्या सभी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नो ऐसा नहीं होता। द डिफरेंट शेल विल हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग शेल में अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल तो जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपको सिखा दी जाती है कि व्हाई दैट हैपेंस, ऐसा होता क्यों है। तो बेसिकली जब आप ध्यान रखते हैं कि जो आपकी फर्स्ट शेल है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन द फर्स्ट शेल देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं पहली शेल के अंदर। आप बेटा यहाँ पे देखो देख भी सकते हैं, देखो ध्यान से देखें, ये बीच में सेंट्रल पार्ट इज द न्यूक्लियस, और बाहर देखो जो हमने क्रॉस से दिखाया दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन। देखो हमने 2 ही क्रॉस लगाए हैं ना फर्स्ट शेल के ऊपर। इन द फर्स्ट शेल देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिमिलरली इन द सेकंड शेल, जो आपकी सेकंड शेल है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन जब तक आप फर्स्ट शेल को फिलअप नहीं कर देंगे आप सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एक बेसिक चीज हम आपसे पूछ लें बेटा, आप हमें ये बताओ कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या है H, उसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या है 1। देखो हमने सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में 1 लिख दिया। सुपरस्क्रिप्ट बेटा कितना होता है 1, मींस मास नंबर भी 1 है। किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन किससे होती है, एटॉमिक नंबर से। इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर से ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का हमें पता चलता है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, ओनली 1, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 1, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है बेटा यहाँ पे वो बेटा कितना है इसका, दैट इज 1। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। आपसे कोई ये कहे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 1 है उनको आप रिप्रेजेंट करके दिखाएं, एटम की स्ट्रक्चर बनाएं, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करके दिखाएं, तो आप कैसे करेंगे। देखो हाइड्रोजन, आप सबसे पहले बेटा देखो ऐसे सेंटर बनाए, दैट इज द न्यूक्लियस। उसके अंदर आप क्या दिखाएंगे बेटा, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स दैट इज P इज इक्वल टू बेटा बोलो कितना है, दैट इज 1, 1 लिखेंगे। और न्यूट्रॉन बेटा इसमें कितना है N, N लिख के बेटा क्या लिख देंगे आप, दैट इज 0, तो आप 0 लिख देंगे कि न्यूट्रॉन तो इसके अंदर 0 है और प्रोटॉन 1 है, सो दैट इज द न्यूक्लियस। ये हमने पहले ही आपको बता दिया था
कि कैसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर ही आपको बताया जा चुका है। तो हमने लिख दिया कि प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है। मींस जो ये नीचे एटॉमिक नंबर था और ऊपर बेटा देखो जो ये हमने लिख रखा था ना, दैट इज अ मास नंबर। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को बेटा आप क्या कहते हैं? दैट डिफरेंस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या होता है बेटा? यही आपके इन दोनों के डिफरेंस से पता चलता है बेसिकली, डायरेक्टली जब आप करें तो। मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस बेटा क्या हो गया? 1 - 1 दैट इज द 0। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद बेटा देखो फर्स्ट शेल हमने देखो बाहर ही ड्रा कर दी, दैट इज द फर्स्ट शेल, जिसे आप शेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर बेटा कितना है इसके अंदर? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 1। तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ई से रिप्रेजेंट कर दिया, ऊपर माइनस चार्ज लगा दिया, या जैसे पहले ये आपके डायग्राम यहाँ पे हमने क्रॉस से दिखा रखा, आप क्रॉस से दिखा दें। वट एवर मे बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन, जो आप चाहें आप वही रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। ई नेगेटिव करके दिखा दें, क्रॉस से दिखा दें, छोटा सा सर्कल बना के दिखा दें, आप जो चाहें वैसे आप इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के लिए हमने शो किया। देखो ये चीज मैंने आपको साथ के साथ इसलिए यहाँ पे बताई, कई बार स्टूडेंट इस चीज में पजल हो जाते हैं। देखो जो अभी हमने यहाँ पे सिखाया था, बोलो क्या सिखाया था? द फर्स्ट शेल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मींस पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, हाइड्रोजन के बारे में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करे, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट को शो करे। तो वो क्या करते हैं, वो उस बात को भूल जाते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। वो सिर्फ इसी बात को ध्यान रख लेते हैं जो अब यहाँ पे बताया गया कि जो आपकी फर्स्ट शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, देखो जैसे ऊपर हाइड्रोजन का डायग्राम था, वहां पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन और रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो तो बेटा रॉन्ग हो गया ना। हमें तो करना क्या है, हमें एटॉमिक नंबर को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन और भर दिया तो वो तो गलत रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो हमें करना क्या है, हमें एटॉमिक नंबर की तरफ जरूर ध्यान देना है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। तो देखो हाइड्रोजन था, उसके अंदर जो पहली शेल थी उसके अंदर बेटा हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए? ओनली 1। क्लियर हो गया? अब चलो एक चीज और आपसे पूछते हैं, हम आपको ये कह दें कि हमने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया हीलियम। अब हीलियम के बारे में आपको क्या करना है? रिप्रेजेंटेशन करनी है। देखो इसी में हम चेंज कर देते हैं। देखो हाइड्रोजन का देखो हमने H के आगे E लिख दिया, बेटा हीलियम बन गया। एटॉमिक नंबर बेटा 2 होता है, देखो 1 का हमने 2 बना दिया। मास नंबर 4 होता है, देखो ऊपर हमने 4 लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा? तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर इज 2, देखो हमने 2 लिख दिया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एटॉमिक नंबर किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इन द हीलियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो अब जो फर्स्ट शेल है, तो अब प्रोटॉन्स भी बेटा कितना दिखाएंगे? प्रोटॉन्स आप 2 दिखाएंगे बेटा, P = 2 हमने लिख दिया। अब बताओ न्यूट्रॉन कितना? मैंने बताया था ना बेटा अभी, मास नंबर के अंदर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो मास नंबर 4 है, ये 2 है, तो 4 - 2 = 2। तो न्यूट्रॉन्स भी बेटा 2 है, देखो मैंने 2 लिख दिया। प्रोटॉन्स आर 2 इन नंबर, द न्यूट्रॉन्स आर 2 इन नंबर, and number of electrons these are also 2 in number, क्योंकि because atomic number is 2। तो एक इलेक्ट्रॉन और दिखा दे, देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन और दिखाया। फिर आप कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपने 2 दिखाए ये अपोजिट एंड्स के ऊपर क्यों दिखाए? एक इलेक्ट्रॉन तो आपने इधर दिखा दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड में। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज है? दैट इज द नेगेटिव चार्ज। एंड ड्यू टू दैट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव के बीच बेटा क्या होगी? रिपल्शन होगी ना। तो उस रिपल्शन की वजह से अब क्या होगा? आपको इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव करेंगे? एक दूसरे से ऑपोजिट एंड के ऊपर मिलेंगे, ताकि उनके बीच रिपल्शन क्या हो? कम से कम हो। सो दैट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। कभी भी आप गलत रिप्रेजेंटेशन ना दिखा दें। आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि आप कभी देखो ऐसे दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको आप इधर शो मत कर देना, इसके बिल्कुल साथ देखो ऐसे, देखो यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे, वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगी, उससे आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान इन छोटी छोटी बातों का जरूर रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप रिप्रेजेंट कहां पे करें। क्या उनको आप साथ साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो? ऑपोजिट एंड के ऊपर ही करेंगे, देखो जैसे मैंने अभी आपको ये दिखा दिया। क्लियर हो गया? सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द हीलियम। ये हमने हीलियम को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम जो सीख रहे थे, ये तो हमने देख लिया कि फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। अब इसके बाद देखो इसको हम क्लियर कर दें। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इन द सेकंड शेल। जो हमारी सेकंड शेल है उसके अंदर मैक्सिमम बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दे? नो, आप खुद बताएं
क्या आप स्टेबल नहीं रहना चाहते हैं? स्टेबल रहना चाहते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज्ड। और स्टेबिलिटी किससे कोरिलेट करती है? स्टेबिलिटी जो है हमारी, जैसे हमारी भी स्टेबिलिटी है, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। जो स्टेबिलिटी होती है इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। एनर्जी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। ये चीज आप ध्यान रखें। एनर्जी कम किसकी है? हमने अभी आपको बताया था ना, ऊपर हमने लिखा भी था, देखो ये रहा द फर्स्ट शेल, जो सबसे पहली शेल होती है उसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, और वो शेल जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कब रहेगा? जब उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि एनर्जी अगर कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो एनर्जी कम कहां पे होगी? जब वो फर्स्ट शेल में होगा। तो इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं इन द डिफरेंट शेल, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन सी शेल में फिलअप करेंगे? फर्स्ट शेल में। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देखा था ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हमने फर्स्ट शेल को फिलअप किया, फिर हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करने थे, तो भी हमने फर्स्ट शेल में फिलअप किया, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। अब अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट ले लें, और उस एलिमेंट का नाम बेटा अब हम रखते हैं लिथियम। देखो Li, लिथियम। एटॉमिक नंबर बताओ बेटा इसका कितना है? 3। और इसका मास नंबर बेटा कितना है? 7। देखो मैंने 7 लिखा। अब आप बताएं, एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो बेटा उसी टाइप से, देखो बीच में हम ये न्यूक्लियस दिखाएंगे। तो प्रोटॉन्स बेटा बताओ शहबाज जल्दी कितने होंगे? जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन्स आर 3 नंबर। न्यूट्रॉन्स बताओ बेटा, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? जल्दी बताओ। न्यूट्रॉन्स मास नंबर जो ऊपर 7 है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, 7 - 3, देखो ऐसे, तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 आपके न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। देखो थोड़ा और क्लियर करके मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे। देखो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। बताओ बेटा प्रोटॉन्स कितने बताए हमने? लिथियम, देखो मैं दोबारा लिखता हूँ, लिथियम 3 और ये 7। क्लियर हो गया बेटा? बीच में हमने प्रोटॉन्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो हमने लिख दिया प्लस करके, आपके लिख दिया 3। व्हाट आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स हम लिखेंगे बेटा 7 - 3, दैट इज द 4। तो ये बेटा आपका न्यूक्लियस हो गया। बेटा कौन हो गया? ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर देखो बेटा, ये पहली शेल आ गई। फर्स्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मैक्सिमम प्रेजेंट? देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। ये हमारा पहला रूल था जो हमने पढ़ा था। तो इसलिए देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन, देखो अपोजिट एंड पे बेटा हमने दिखा दिया ना। उसके बाद अब सेकंड शेल आएगी बेटा, एक सर्कल और लगाओ इसके चारों तरफ। देखो सेकंड शेल, देखो एक सर्कल और लगाया। अब सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। लेकिन आप 8 इलेक्ट्रॉन मत फिलअप कर देना, यही गलती मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप एटॉमिक नंबर की तरफ ध्यान दें। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द लिथियम? द एटॉमिक नंबर ऑफ द लिथियम इज 3। मीन्स इट हैज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन हम पहले ही फिलअप कर चुके हैं, फर्स्ट शेल में बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन को बेटा और फिलअप करें। तो फर्स्ट शेल के बाद देखो ये थी बेटा फर्स्ट शेल, n इजिकल टू, देखो बेटा हमने यहाँ पे देखो 1 लिखा फर्स्ट शेल, जिसे बेटा आप k से भी रिप्रेजेंट करते हैं, k शेल। अब जो सेकंड शेल है ना बेटा, n इजिकल टू देखो 2, n इजिकल टू देखो 2 लिखा मैंने। इसको आप L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L, इसे L शेल भी कहते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बेटा देखो मैंने नीचे की तरफ देखो दिखा दिया 1, थर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ना, थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, लिथियम का जो एटम है उसकी ये स्ट्रक्चर है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कॉन्फिगरेशन हमने लिख दी, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हमने दिखा दी। तो देखो जो ये हमने नीचे पॉइंट लिख रखा है, द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये हमने क्या लिखा था? अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, इन डिफरेंट शेल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बेटा अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि हाउ विल यू डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगुरेट करने का मतलब होता है अरेंज कर देना। किनको? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दे, कहां पे कर दे अरेंज? अराउंड द न्यूक्लियस कर दे। अराउंड द न्यूक्लियस जो सर्कुलर पाथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें शेल्स कहते हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स, और यू कैन से द ऑर्बिट इन एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं। एग्जाम में आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखाएं आप हाइड्रोजन की, उसके बाद हीलियम की शो करें, या पूछ ले लिथियम की शो करें। जैसे लिथियम के बारे में हमने ये डायग्राम आपके सामने ड्रा कर रखा है। इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से भी शो कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का बेटा आपको ध्यान रखना है। तो बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं, एक और डायग्राम ले लेते हैं आपके लिए। अब इन्हीं बातों का बेटा आप ध्यान रखना। अभी तक आपने क्या सीख लिया कि फर्स्ट शेल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन,
द सेकेंड शेल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। और हमेशा फर्स्ट शेल को फिलअप किए बगैर आप सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पहले आप इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में भर दें फिर फर्स्ट शेल में भर दें, आप ऐसा भी नहीं करेंगे। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, हमने मान लीजिए कार्बन ले लिया, ठीक है। इसका मास नंबर देखो 12 होता है, एटॉमिक नंबर देखो 6 हो गया। जो सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं देखो ये 6, ये बेटा क्या हो गया इसका, दैट इज द एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6 है। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को शो कर दें। प्रोटॉन्स बताओ बेटा कितने हैं, दीज आर 6 इन नंबर, तो p + 6 हमने लिख दिया। न्यूट्रॉन्स बताओ बेटा कि कैसे, अभी सिखाया था आपको। ऊपर देखो जो मास नंबर होता है आपका 12 में से 6 को क्या कर देंगे, इनको माइनस, डिफरेंस ले लेंगे। ऊपर बेटा कौन सा नंबर होता है, दैट इज द मास नंबर। तो जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 12 - 6 इज द 6, सो दैट इज द न्यूक्लियस। देखो ये हमने न्यूक्लियस को शो कर दिया, क्लियर हो गया। इसके बाद फर्स्ट सर्कुलर पाथ हमने लिया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सर्कुलर पाथ के अंदर तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया E- करके। उसके बाद बेटा नेक्स्ट शेल को हम लेते हैं, देखो दैट इज द सेकंड शेल। अब इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आपको 8 फिलअप नहीं करने, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का तो 6 था, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं द फर्स्ट शेल के अंदर, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन को शो करें, देखो विद द गैप, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4 दिखा दिया ना बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज द डायग्राम फॉर द आपके किसके लिए, कार्बन के लिए। कार्बन का एटम है, ये किस चीज का एटम है बेटा, कार्बन का एटम। ये तो थोड़ा हम आपको समझाने के लिए बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को शो कर देते हैं, नहीं तो देखो जो साइड में डायग्राम, आप ऐसे छोटा सा डायग्राम भी देखो, ये इस टाइप से आप डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। छोटा सा बनाएं, ऐसे बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये चीज आपके लिए क्लियर हो जाए, इसलिए सारी चीजें आपको बता रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। सो दैट इज अबाउट द कार्बन। तो ये हमने कार्बन के बारे में बताया। उसके बाद एक डेफिनेशन हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हाउ विल यू डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखो जो हमने यहाँ पे लिख रखी थी, बताओ बेटा डेफिनेशन क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स इन द फर्स्ट शेल, सेकंड शेल इन एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और जब इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कैसे करते हैं, क्या रूल है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा 2, उसके बाद बेटा कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। द थर्ड शेल कैन होल्ड ओनली द 8 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज द आउटर शेल। देखो ये आपकी आउटर शेल, देखो हमने यहाँ पे दिखा रखी है। थर्ड शेल में बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। द नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन गो इनटू द फोर्थ शेल, बट आफ्टर दैट द थर्ड शेल कैन टेक द 10 मोर इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसके लिए कुछ बेसिक रूल भी हैं जो आपको बाद में समझाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन हमें देखो याद तो रखनी ही है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने के पीछे कुछ बेसिक रूल्स हैं। देयर आर सम बेसिक रूल्स जो आपको बताए जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो लेकिन डायरेक्टली आप कैसे याद करेंगे, फर्स्ट शेल के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बेटा किस में फिलअप करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट फोर्थ शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर दैट थर्ड शेल में दोबारा से 10 मोर इलेक्ट्रॉन्स और आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। बेटा देखो यहाँ पे ये 2 साइंटिस्ट हैं, फेमस साइंटिस्ट, वन इज द नील बोहर एंड अदर वन इज द एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने क्या किया, इन द 1925 नील बोहर पुट फॉरवर्ड द आइडिया the electron occupies the specific energy levels around the nucleus, and these called as the shells, and these circular path around which the electron revolves called as the shell. किसने दी थी बेटा ये टर्म शेल की, that is the बोहर साइंटिस्ट, नील बोहर जो साइंटिस्ट था। अब हम बेटा जो आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के देखो ये डिफरेंट डायग्राम्स हैं, अब हम इनके बारे में इन डिटेल देखेंगे कि जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं, देखो ये डिफरेंट डायग्राम्स आपके सामने आएंगे, अब इनके बारे में इन डिटेल हम देखेंगे बेटा। अभी मैंने आपको समझा भी दिया था, थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देंगे बेटर। जो डायग्राम है इन्हीं को समझाएंगे कि इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रखी है। बेटा बड़े ध्यान से देखना, हम ये स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से। पहले हम देखते हैं बेटा हाइड्रोजन के बारे में। फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन। क्लियर हो गया बेटा, लेफ्ट साइड में आपके हाइड्रोजन। देखो ये सर्कुलर पाथ हमने दिखाया, बीच में आप क्या करेंगे, सिर्फ सेंट्रल पार्ट के अंदर ऐसे पॉजिटिव चार्ज दिखा के ऐसे छोटा सा सर्कल लगा देना।
दैट इज द न्यूक्लियस। हर एक के अंदर ये करेक्शन आप जरूर कर लेना कि बीच में देखो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लगाएं, इसके बाहर देखो सर्कल लगा दे, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द न्यूक्लियस। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन ड्रा करेंगे तो बेटा क्या, इसके बाहर देखो हमने एक सर्कल लगाया और इसके ऊपर देखो एक क्रॉस लगा दिया, ऐसे एक क्रॉस। देखो जो ये डायग्राम हमने यहाँ पे बना रखा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन फॉर द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के लिए बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे हीलियम। अब हीलियम में भी देखें बेटा, देखो इस एंड के ऊपर देखो ये हमने प्लस चार्ज लगा दिया बीच में, देखो इसी टाइप से, और दो क्रॉस हमने शो कर रखे, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन फॉर द हीलियम। इसमें बेटा हीलियम में हमने क्या किया, देखो मैं आपको अलग से देखो यहाँ पे डायग्राम अगर ड्रा करके दिखा दूं तो आप ध्यान से देखें, देखो ये पॉजिटिव चार्ज दैट इज द न्यूक्लियस, इसके बाहर देखो ये सर्कुलर पाथ हमने ड्रा कर दिया, देखो ये वन क्रॉस हमने शो कर दिया, ये सेकंड क्रॉस देखो हमने शो कर दिया, दैट इज द डायग्राम फॉर द हीलियम। क्लियर हो गया। अब लिथियम के लिए बेटा, उसके बाद लिथियम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना बेटा, मैक्सिमम हमने बताया था, तो देखो ये सेकंड शेल आपकी आ गई, इसमें वन क्रॉस लगा दें, हो गया ना बेटा थर्ड क्रॉस, सो दैट इज फॉर द लिथियम, देखो ये लिथियम का डायग्राम बन गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए देखो वन क्रॉस और लगा दें, देखो ये मैंने वन क्रॉस और लगा दिया, दैट इज फॉर द बेरिलियम। उसके बाद बोरोन के लिए कहें, बोरोन के लिए बेटा वन मोर क्रॉस इन द सेकंड शेल, देखो ये ध्यान रखिए बेटा, ये आपकी फर्स्ट शेल है, ये कौन सी शेल है बेटा, दैट इज द सेकंड शेल। फर्स्ट शेल को हमने बताया था ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द के शेल, इसे आप के शेल भी कह देते हैं। सेकंड शेल को बेटा आप एल शेल भी कह देते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन 2 to 4, कहां तक पहुंच गए हम, बेरिलियम तक, वेरी गुड। उसके बाद बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर बेटा 5 है, वन मोर इलेक्ट्रॉन, देखो ये हमने वन क्रॉस और लगा दिया, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट कलर से हम शो कर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, देखो फॉर द कार्बन, देखो ब्लू कलर से हम शो कर देते, दैट इज द 6 इलेक्ट्रॉन, हो गया ना, ब्लू कलर से हमने शो कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, उसके बाद बेटा क्या करेंगे, चलो इसको हम शो कर देते हैं पिंक कलर से, देखो हमने एक क्रॉस और लगा दिया बेटा, देखो ये क्लियर हो गया, दैट इज द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा कितने हो चुके हैं, दैट इज द 7। अब ध्यान से देखें, फर्स्ट शेल के अंदर देखो ये 1, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, आप चाहे सर्कल से शो कर दो ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब नेक्स्ट में बेटा कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 एंड 5, हो गया ना बेटा, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन की टर्न आई तो 8, वन सर्कल और लगा दें। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं बोलो सेकंड शेल के अंदर, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन्स और फिलअप करें। नियोन, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और फिलअप करें, हो गए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। अभी आपको बताया था ना सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अब कॉन्जुगेशन जब लिखी तो बेटा देखो कैसे लिखी, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो देखो हमने 1 लिख दिया, कॉन्फ़िगरेशन है 1, ये 2 लिखा। लिथियम में 2,1 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में 2,2 क्यों लिखा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया बेटा। थर्ड बोरोन में देखें 2,3, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 3। कार्बन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4, जैसे अभी हम आपको ऊपर डायग्राम भी ड्रा करके दिखा रहे थे। उसके बाद 2,5, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 5। ऑक्सीजन 2,6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6। फ्लोरीन 2,7, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 7। नियोन फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड शेल भी कंप्लीट हो चुकी है बेटा। अब सेकंड शेल जब आपकी कंप्लीट होगी तो अब इसके बाद क्या करें, अब टर्न आएगी थर्ड शेल की। बेटा किसकी टर्न आएगी, अब थर्ड शेल की टर्न आती है। हम इस डायग्राम को यहां से रिमूव करते हैं, दोबारा से डायग्राम बनाएंगे बेटा आपके लिए। देखो एक हमने क्लियर कर दिया सारा टोटल। अब नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं बेटा सोडियम के ऊपर। देखो इसको थोड़ा ऊपर कर दें हम अपने सभी डायग्राम को। देखो हम सोडियम तक बेटा आ चुके हैं। अब हम सोडियम के लिए देखो डायग्राम बनाएंगे बेटा, थोड़े ध्यान से देखना हर चीज को। सोडियम एटॉमिक नंबर बेटा कितना है इसका, 11। 11 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम। क्लियर हो गया। तो अब हम देखो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले बीच में देखो इस हमने ये न्यूक्लियस शो किया, देखो पॉजिटिव चार्ज लगा के, दैट इज द न्यूक्लियस। उसके बाहर बेटा फर्स्ट शेल हम ड्रा करते हैं। सोडियम बेटा ये ध्यान रखना 11 एटॉमिक नंबर है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देखो हम सर्कल से शो कर देते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। उसके बाद हम करते हैं बेटा सेकंड शेल, देखो दैट इज नाउ द सेकंड शेल। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन द सेकंड शेल, 8। तो एटॉमिक नंबर क्योंकि 11 है, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, देखो हमने लिखा ना 2, फिर कोमा लगा के क्या लिखा 8, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं।
तो अब हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को देखो रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्ड शेल। अब हम थर्ड शेल को देखो यहाँ पे ड्रा करते हैं, दैट इज द थर्ड शेल। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? वैसे तो आपने सीख लिया कि थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करने, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर की तरफ ध्यान देना है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम? दैट इज द 11। 11 है बेटा। 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन और फिलअप करना है, तो वन मोर इलेक्ट्रॉन दैट गोज इनटू द थर्ड शेल। देखो ये थर्ड शेल में बेटा हमने देखो ये सर्कल लगा दिया। नाउ दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द, बोलो किसके लिए? दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर किसके लिए है? सोडियम। ये सोडियम के एटम की स्ट्रक्चर है। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बन गई? जो हमने ऊपर लिखा था 2, 8, 1। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। अब अगर मैग्नीशियम के लिए आपसे कहें कि मैग्नीशियम का डायग्राम बनाएं, तो कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिख देंगे बेटा? 2, 8, 2, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखो 2 ही, और सेकंड शेल में 8, और थर्ड शेल में बेटा कितने? 2, एक इलेक्ट्रॉन और देखो हमने ये, देखो ये एक और हमने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दी मैग्नीशियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए चलें 2, 8, 3, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में एक और इंक्रीज कर दे। देखो मैंने एक ब्लू सर्कल ये और लगा दिया, इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन है ये। उसके बाद सिलिकॉन, SI सिलिकॉन, सिलिकॉन की रिप्रेजेंटेशन है S कैपिटल और I स्मॉल। एल्यूमिनियम की Al थी, A कैपिटल और L स्मॉल। तो ये बेटा पहले ही आपको बता दी थी, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और फोर्थ में, थर्ड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कर देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद फास्फोरस P 2, 8, 5 मींस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, सेकंड शेल में 8 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ 5 फिलअप करने हैं। तो 1 मोर इलेक्ट्रॉन, देखो ये 1 और इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं 2, 8, 6, 2 और 8 10 प्लस 6 16 आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। क्योंकि फिर से आपको याद दिला दें 16 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सल्फर। सल्फर को बेटा आप रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं S, नीचे 16 और ऊपर बेटा क्या लिखते हैं? 32। 16 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सल्फर। देखो काफी देर हो गई, हमने इन चीजों का जिक्र नहीं किया था, इसलिए दोबारा से आपको बता रहे हैं दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सल्फर। मींस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 16 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 16 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हमने 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं। तो इसलिए हमने कॉन्जुगेशन लिखी 2, 8, 6, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अब 17 क्लोरीन 2, 8, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन देखो और फिलअप कर दें 3, 4, 5, देखो ये 6, अब 6 हो गए थे और ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद क्लोरीन के बाद आर्गन 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन 8th इलेक्ट्रॉन और फिलअप कर दिया। सो दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर द आर्गन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2, 8, 8। हमने बताया था अभी आपको डेफिनेशन के बारे में कि हाउ विल यू डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? means the arrangement. What is the arrangement of the electrons? Means the arrangement of the electrons in the different shells in an atom. The arrangement of the electrons in the different shell present around the nucleus in an atom is called the electronic configuration. उसे आप electronic configuration कहते हैं। तो ये हम एटम की स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और साथ के साथ इलेक्ट्रॉनों की रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट भी शो कर रहे हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और सिंपल पूछें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपने लिखा 2, एंड सो ऑन। देखो जो बातें हम बता रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट आ गया बेटा पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। हमने बताया था ना, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपकी सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ शेल में आएंगे। देखो अब हम ड्रा करते हैं बेटा यहाँ पे फोर्थ शेल। देखो हमने ये एक सर्कल और लगा दिया, देखो बेटा बाहर। सो दैट इज द फोर्थ शेल। अब एटॉमिक नंबर 19, तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा वो किसके अंदर आएगा? दैट विल गो इनटू द फोर्थ शेल। देखो ये मैंने सर्कल से शो कर दिया। सो दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी बेटा? 2, 8, 8, 1 हो गया ना पोटेशियम के लिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद आपके फोर्थ शेल के अंदर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे अभी हमने बताया था। उसके बाद कैल्शियम के बाद चले, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो 1 मोर इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया देखो हमने 2, 8, 8, 2। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कैल्शियम। औरों की भी आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हमने बताया था कि अगर नेक्स्ट जो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आफ्टर दैट द नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स
will go into the third shell. दोबारा से थर्ड शेल में अगले 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। थर्ड शेल में पहले 8 इलेक्ट्रॉन आए, फिर फोर्थ शेल में 2 आए, अब दोबारा से थर्ड शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कैल्शियम के बाद। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, वो आपको बाद में इन डिटेल बता दिए जाएंगे। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज हमने कैसे कर रखा है। दे आर अरेंज्ड इन 2 वेज, लेफ्ट टू राइट, जिसे आप क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, दीज कॉल्ड एज द पीरियड्स, एंड द वर्टिकल कॉलम्स, ऊपर से नीचे, दीज कॉल्ड द ग्रुप्स। वो 18 ही नंबर होते हैं, वो 18 होते हैं आपके। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्हाट पैटर्न इन द पीरियोडिक टेबल। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम भरते हैं, आपने देखा कि डिफरेंट जो आपके एटम थे, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम थे, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपने फिलअप किए, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग शेल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के सारे आपके एटम, वो सारे के सारे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको सेम ग्रुप के अंदर रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं आपको अभी बताता हूं एग्जाम्पल लेके, अब ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा बेटा H, देखो यहाँ पे H। अब ये बताएं, इसकी कॉन्जुगेशन लिख के बता दे बिना डायग्राम के, बताओ बेटा। 1, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपके सामने लिखता हूं बेटा लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। अब बताओ बेटा शाबाश, जल्दी से कैसे लिखेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2,1। तो बेटा हाइड्रोजन के अंदर कितनी शेल है बताओ, सिर्फ एक ही शेल है, फर्स्ट शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन देखो हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद अब लिथियम बताएं, उसमें 2 शेल है बेटा, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो में जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, हाइड्रोजन में तो शेल ही एक है, वही आउटर मोस्ट शेल है, उसी को वैलेंस शेल भी कहते हैं। उसी को बेटा कौन सी शेल कहते हैं बताओ, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस शेल। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, हाउ विल यू डिफाइन द टर्म वैलेंस शेल। द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज द वैलेंस शेल। मींस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट शेल होती हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, जैसे अभी हमने डायग्राम बनाए थे। उनमें से हर एटम के अंदर जो शेल्स का नंबर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन के अंदर तो बेटा एक ही शेल है, पहली शेल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक है। लिथियम में बेटा 2 शेल आ गई, पहली शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई, सेकंड शेल। सो द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज द वैलेंस शेल, उसी को वैलेंस शेल कहते हैं। आप ये बताओ हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1, वेरी गुड। लिथियम की वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, बिल्कुल ठीक। तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल जो हमने शो की थी, जिसे ग्रुप नंबर 1 कह रहे थे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप नंबर 1, जो सबसे देखो पहली जो लाइन थी आपने देखा था ना, उसमें देखो पहले H लिख रखा था, उसके बाद बेटा लिथियम लिखा था, ये 1 एटॉमिक नंबर 3। उसके नीचे बेटा आपने देखा होगा वहां पे सोडियम लिख रखा था, देखो Na एटॉमिक नंबर 11। क्यों लिखा बेटा सोडियम यहाँ पे, अब देखो इसके बारे में बताते हैं। सोडियम की अगर मैं आपसे कॉन्जुगेशन पूछूं, देखो वहीं पे मैं ऊपर लिख देता हूं, Na एटॉमिक नंबर 11 है बेटा। कॉन्जुगेशन बताओ बेटा क्या लिखेंगे, बताओ पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, बिल्कुल ठीक है, 2 लिख दिया। उसके बाद बताओ सेकंड शेल में 8, देखो हमने 8 लिख दिया। बोलो अब तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर चुके हम, 10। पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। अब एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, एटॉमिक नंबर इज 11। 11 मींस टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो 11 ही है सोडियम के अंदर, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के अंदर, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स ही तो हमें फिलअप करने हैं। तो कितने फिलअप कर चुके हैं आप अभी तक, ओनली 10, 2,8, फिर कोमा लगा के अब थर्ड शेल के अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन और फिलअप कर दिया। अब ये बताओ, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए सोडियम के अंदर वैलेंस शेल कौन सी है, क्या फर्स्ट शेल वैलेंस शेल है, क्या सेकंड शेल वैलेंस शेल है, या थर्ड शेल वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल। देखो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, थर्ड शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है। तो आप ये देखें हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की वैलेंस शेल के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं जो ये ग्रुप बना रखे हैं ना बेटा पीरियोडिक टेबल में, जो आपने देखा था, जो पहली लाइन थी, जो फर्स्ट ग्रुप था, जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम था, उसमें हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम क्यों रखा, क्यों बनाई ये पीरियोडिक टेबल ऐसे। हमने बताया था कि जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था ना बेटा, आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, केमिकल जो चेंज होते हैं, केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ध्यान रखना, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कोई एलिमेंट है, वो आपकी रिएक्शन शो करता है, दूसरा एलिमेंट भी उसी जैसी रिएक्शन शो करता है, ऐसा क्यों।
वो इसीलिए क्योंकि उनकी वैलेंस शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। बताओ, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। लिथियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, अभी हमने शो किया। सोडियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। हो गए ना सभी की वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जिनकी वैलेंस शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक ग्रुप के अंदर रख दिया गया है। जैसे ग्रुप नंबर 1 के अंदर, ग्रुप नंबर 1 का मतलब वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन का होना। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 का मतलब वो सारे एलिमेंट जिनकी वैलेंस शेल में एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ज्यादा आपको डिटेल में जाने की बजाय डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं। बताओ बेटा, पीरियोडिक टेबल जो हमने देखी थी उसके अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? फर्स्ट ग्रुप के अंदर वही एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंस शेल के अंदर एक जैसे इलेक्ट्रॉन हैं। एक जैसे कितने? एक इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के अंदर कौन से एलिमेंट है बेटा? सारे, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आप देखेंगे ना, ये सारे एलिमेंट सेकंड ग्रुप में क्यों हैं? क्योंकि ग्रुप नंबर 2 के अंदर 2 है ना बेटा, क्योंकि उन सभी की वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे, चलो एक बार आपको बता देते हैं जैसे आप कह रहे हैं। अब हम बेटा देखो एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से देखना ग्रुप नंबर 2 के बारे में। आप ग्रुप नंबर 2 का बेटा पहला एलिमेंट बताओ कौन है? फर्स्ट एलिमेंट जो है ना बेटा ग्रुप नंबर 2 का, दैट इज द बेरिलियम। एटॉमिक नंबर इज 4। अब बताओ बेटा इसकी कॉन्जुगेशन बताओ जल्दी से। एटॉमिक नंबर 4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, कोमा सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 आ सकते, लेकिन 2 ही फिलअप करेंगे। 2,2 होगी ना बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन। अब बेरिलियम के नीचे बेटा मैग्नीशियम है। क्यों है मैग्नीशियम? एटॉमिक नंबर तो बेटा 12 है इसका, लेकिन ये क्यों आ गया इसके नीचे? कॉन्जुगेशन लिख के बताओ बेटा, कैसे सिखाया था, रूल क्या था? बोलो, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? मैक्सिमम 2। बिल्कुल ठीक है। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 8। तो देखो 2,8 हमने लिख दिया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं अभी तक? 10। अब एटॉमिक नंबर कितना है मैग्नीशियम का? वो 12 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और बच गए? 2 और बच गए। तो 2,2 दैट इज द थर्ड शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आउटर मोस्ट शेल बेरिलियम में कौन सी थी? सेकंड शेल आउटर मोस्ट शेल थी बेटा ये। और मैग्नीशियम में थर्ड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली मैग्नीशियम की भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए तो इनको एक ग्रुप में रखा गया है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे ना बेटा, जो ग्रुप नंबर देखो हमारा जो 2 है, ग्रुप नंबर बेटा कौन सा है? जो 2 है, उसके अंदर बेरिलियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है। इन सभी की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो आपके जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं ना बेटा, जो 18 ग्रुप्स आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो, ग्रुप नंबर 1 मींस द वर्टिकल कॉलम फर्स्ट, वर्टिकल कॉलम सेकंड, वर्टिकल कॉलम थर्ड, ऐसे 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं बेटा। तो ये जो ग्रुप्स बने हैं ना, क्यों बने हैं? पहला ग्रुप, पहले ग्रुप में वो सारे एलिमेंट होंगे बेटा जिनकी वैलेंस शेल में बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे 1 होता है। सेकंड ग्रुप में बेटा वो सारे एलिमेंट मिलेंगे जिनकी वैलेंस शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कितने? उसमें 2 हैं, एंड सो ऑन। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप में आप ऐसा देख सकते हैं। अब क्लियर हो गया बेटा यहां तक? तो अब हम देखो आपको ये रीड करके बताते हैं। द पैटर्न इन द पीरियोडिक टेबल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन इज लिंक्ड क्लोजली विद द पीरियोडिक टेबल, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। द पीरियड नंबर, द पीरियड नंबर टेल्स यू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शेल आर ऑक्युपाइड, कितनी शेल ऑक्युपाई हो चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बताओ, आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए बेरिलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, बोलो कितनी शेल यूज हुई है बेटा? बताओ इसमें। देखो बेरिलियम में देखो, एक तो फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक सेकंड शेल उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। कौन सी शेल यूज हुई बेटा? कितनी शेल हुई? 2 ही यूज हुई है। सो बेरिलियम इज द सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब आप इसकी सेंस समझ गए बेटा? आपको सिर्फ क्या देखना है कि आपके किसी भी एलिमेंट की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें कितनी शेल यूज हो गई है, कितनी शेलों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बेरिलियम में 2 शेल में इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज द सेकंड पीरियड एलिमेंट। बेटा बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप मैग्नीशियम के बारे में बताओ बेटा, शाबाश जल्दी बताओ कितने शेल यूज हो गई। देखो फर्स्ट शेल यूज हुई 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल यूज हुई इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल यूज हुई उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी मैक्सिमम शेल are used during the electronic conjugation? 3 shells. तो 3 shell का मतलब that is the third period element। 3 शेल यूज हुई ना, so it is the
थर्ड पीरियड एलिमेंट। आपसे वैसे पूछ लेते बेटा हाइड्रोजन के बारे में बताओ, शाबाश बताओ, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, बोलो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कॉन्जुगेशन लिख दो 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में है, सो इट इज द फर्स्ट पीरियड एलिमेंट। अब बेटा हीलियम के बारे में बताओ, शाबाश जल्दी से, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, कॉन्जुगेशन लिखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 लिख दिया हमने, तो एक ही शेल यूज हुई, तो इट इज ऑल्सो द फर्स्ट पीरियड एलिमेंट। चलो बेटा कार्बन के बारे में बता दो हमें, देखो इनको मैं क्लियर कर देता हूं एक बारी, जल्दी से बेटा कार्बन के बारे में बताओ, इस कौन से पीरियड का एलिमेंट एग्जाम में पूछ लें, देखो 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, तो 2,4 हो गया ना बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो कितनी शेल यूज हुई, 2 ही शेल यूज हुई, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4, तो कार्बन इज ए सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब बेटा इस बात का मतलब आप समझ गए होंगे, सो दैट इज द पॉइंट नंबर 1, द पीरियड नंबर हमें कैसे पता चलता है, द पीरियड नंबर टेल्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स आर ऑक्युपाइड, या कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम पीरियड का पता लगा सकते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे ग्रुप नंबर की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर दी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन था। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनकी वैलेंस शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो दीज आर दी सेकंड ग्रुप एलिमेंट। तो इस टाइप से हम पीरियड का और ग्रुप का पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब उसके बाद बेटा देखो सेकंड के बाद अब ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में अब हमें ये पता लगाना है कि जो जितने भी एलिमेंट है ना बेटा, जो एक ग्रुप में रख रखे हैं, उन सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल कितने, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उन सभी के अंदर वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उन सभी की प्रॉपर्टी एक जैसी है। हाँ, वो एक अलग बात कि कोई मोर रिएक्टिव होगा, कोई थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज एक जैसी शो करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा बेटा यही है, देखो जो हमने यहाँ पे लिखा है, द नंबर ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स डिक्टेट्स या टेल्स हाउ एन एलिमेंट रिएक्ट्स। कोई भी एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट का मतलब इन द वैलेंस शेल। क्लियर हो गया बेटा। तो दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाई द एलिमेंट इन ए ग्रुप have the similar reactions। किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, वो एक जैसी रिएक्शन क्यों शो करते हैं, एग्जाम में आ जाए, why the element in a group shows the similar reaction। बोलो बेटा क्या आंसर लिखेंगे, because all these element have the same number of electron in their outermost shell, in their valence shell, so they will show the similar reactions। इसलिए वो एक जैसी रिएक्शन को शो करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद एक स्पेशल ग्रुप है, सबसे लास्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 18 भी जिसे कहते हैं, क्योंकि या इसको ग्रुप नंबर रोमन लेटर्स में लिखें तो ऐसे 8 लिख देते हैं, क्योंकि बीच में कुछ की नोमेनक्लेचर अलग टाइप का था। सिंपल नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3 4 18 तक, तो लास्ट ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 18। ये सबसे स्टेबल ग्रुप है, क्योंकि इनकी जो शेल है वो फुलफिल्ड रहती है, बिकॉज देयर एटम हैव द फुलफिल्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हीलियम को आप देख लें, बताओ बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज द 2। व्हाट इज द कॉन्जुगेशन, देखो सिर्फ 2 लिखा, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 ही हैं इसके अंदर। उसके बाद हीलियम के नीचे बेटा नियोन होता है, नियोन एटॉमिक नंबर 10। बताओ बेटा इसकी कॉन्जुगेशन कैसे लिखेंगे, 2 कॉमा, बताओ बेटा आगे क्या लिखेंगे, 8। फर्स्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, सेकंड शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो नियोन में 8 ही हैं। देखो जैसे हमने ये डायग्राम, ये नियोन का था बेटा, ये हीलियम का था, सो दे हैव द फुलफिल्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। देखो हमने क्या लिखा, व्हाई दे हैव द स्पेशल इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, व्हाई दीज एटम आर मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, बिकॉज दे हैव द फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन, क्योंकि इनकी जो आउटर शेल है ना, ये फुलफिल्ड है बेटा, दे हैव द फुलफिल्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन, सो दे आर द मोस्ट स्टेबल ग्रुप। ये पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रुप होता है। तो ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। अब बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, आपको क्या ध्यान रखना है बेटा लास्ट के अंदर। अब नट शेल में हम कुछ बातें आपको बताएंगे। देखो ए फुल फिल्ड आउटर शेल मेक एन एटम स्टेबल, मैंने अभी बताया, क्योंकि अगर वो फुलफिल्ड हो चुका है तो उसको स्टेबिलिटी क्रिएट करता है और वो अनरिएक्टिव होते हैं। वो आपके तो ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट हैं, आखिरी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, वो सबसे ज्यादा आपके स्टेबल होते हैं, वो अनरिएक्टिव होते हैं। वो बेटा कैसे होते हैं आपके, अनरिएक्टिव। क्लियर हो गया यहां तक। अब उसके बाद आप इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं बेटा, देखो ये लिख रखा, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द नोबल गैस। देखो जो हीलियम है, इट इज ए लाइट गैस, ये लाइटेस्ट गैस है, इट इज अनरिएक्टिव, ये अनरिएक्टिव भी है। रीजन क्या, अभी मैंने बताया, बिकॉज दे हैव द फुलफिल्ड वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन।
और इसको कहाँ पे यूज करते हैं? इन फिलिंग द बैलून्स, बैलून्स को भरने में इसको यूज किया जाता है। इनको नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव, बिकॉज ऑफ द अनरिएक्टिव नेचर ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट, हीलियम, नियोन, आर्गन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नोबल गैसेस। इन्हें बेटा हम नोबल गैसेस कह देते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अब लास्ट में आपके ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बता दें। बताओ बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जल्दी से जवाब देना। वन एलिमेंट हैज एटम्स विद 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका हमें क्या करना है बेटा? ड्राई डायग्राम टू शो हाउ इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड। उसका डायग्राम हमें ड्रा करना है। बताओ बेटा कैसे डायग्राम ड्रा करेंगे? देखो सबसे पहले बेसिक आपको बता दें, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में बेटा कितना? 3। तो ऐसे आप डायग्राम ड्रा कर देना। बीच में तो देखो आप क्या दिखा देंगे? प्रोटॉन्स। बेटा कैसे दिखाना? 13 आप लिख देना बेटा ऐसे, P13, P+13 लिख देना। बल्कि न्यूट्रॉन बेटा कैसे, वो दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। जस्ट ए मिनट बेटा। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा? ये तो आपको आ गया ना बेटा समझ में, डायग्राम कैसे बनाएंगे? 2,8,3 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, सेकंड में 8 और थर्ड में 3। डायग्राम आपको काफी सारे हमने बनवा दिए थे, तो आप डायग्राम बेटा बना लेंगे। उसके बाद गिव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन इन दिस फॉर्म 2, दिस मच, वो बेटा हमने ऊपर लिखी दी 2,8,3, 2,8,3। नेम द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 13 है, तो एलिमेंट बेटा आपका एल्यूमिनियम होगा। Al उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, एल्यूमिनियम। रिप्रेजेंटेशन बेटा इसकी क्या होती है? कैपिटल A और स्मॉल l लिखेंगे बेटा। सो दैट इज द एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके देखो तीनों पार्ट आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन फॉर द बोरॉन इज 2,3। व्हाट इज इट फॉर लिथियम? लिथियम के लिए कितनी होगी बेटा? लिथियम जिसको आप Li से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर बेटा 3 है, तो बताओ 3 है तो कॉन्जुगेशन बेटा क्या बनेगी? 2,1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को बेटा किस कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं? बताओ बेटा शाबाश। Mg12 एटॉमिक नंबर होता है। देखो एटॉमिक नंबर बेटा आप जरूर ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर आप बेटा जरूर ध्यान रखेंगे। तो एटॉमिक नंबर बेटा कितना है इसका? एटॉमिक नंबर इज 12, एटॉमिक नंबर इज 12 फॉर द मैग्नीशियम। तो बताओ कॉन्जुगेशन बताओ, फर्स्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2। सेकंड शेल में बताओ मैक्सिमम 8 और 2 10, कोमा बताओ 2,8,2। सो दैट इज द कॉन्फिगरेशन फॉर द मैग्नीशियम। क्लियर हो गया बेटा? अब इनको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तो बेटा सिंपल है, आप लिख ही देंगे 1, सिंपल 1, दैट इज द कॉन्जुगेशन फॉर द हाइड्रोजन। एंड अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। एन एलिमेंट हैज 5 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, व्हिच ग्रुप इज इट इन? तो आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स बेटा कैसे करते हो? देखो 2, देखो हमने 5 लिख दिया बेटा, 2,5। फर्स्ट शेल के अंदर तो 2 ही आ सकते हैं, सेकंड शेल में बेटा हमने 5 कर दिए, तो 2,5 बेटा कौन सा हो गया? बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। 2,5 दैट इज द 7 एटॉमिक नंबर। और 7 बेटा एटॉमिक नंबर है, तो 7 एटॉमिक नंबर है तो बेटा कौन हो गया? दैट इज द नाइट्रोजन। अगर एलिमेंट आपसे पूछ ले, अब ग्रुप पूछा है, तो वैलेंस शेल के अंदर बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसके अंदर आप 10 ऐड कर दें, ऐड 10 इन इट, ऐड 10 इन इट। और उसके बाद बेटा क्या आ गया आपका? टोटल 15, दैट इज द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। ये ग्रुप नंबर 15 का बेटा आपका एलिमेंट हो गया, ग्रुप नंबर 15। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शेल डू द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शेल, बोलो कितनी शेल होंगी बेटा? पीरियड अगर 3 है तो उसमें 3 ही शेल होंगी ओनली। हमने अभी तो ऊपर आपको सिखाया था 3 शेल्स होंगी, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड द थर्ड शेल। थर्ड शेल यूज होती है तभी तो वो थर्ड पीरियड एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एटम्स ऑफ द ग्रुप नंबर 8 एलिमेंट्स have a full outer shell of electrons. How does this affect these elements? जो ये जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे, क्योंकि उनकी फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन है, सो दीज कॉल्ड एज द नोबल गैसेस, दीज कॉल्ड एज द नोबल मेटल्स। आपके नोबल एलिमेंट्स हैं, तो नोबल एलिमेंट्स हैं तो दे हैव जीरो रिएक्टिविटी, इनकी कोई रिएक्टिविटी नहीं होगी। सो दैट इज द इफेक्ट ऑन देयर प्रॉपर्टीज। ऑल हैव
no reactivity, all have fulfilled stable conjugation in their valence shell, so they are unreactive in nature. The element krypton, देखो Kr krypton लिखा है, कहाँ पे आता है बेटा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये आपका जो लास्ट ग्रुप है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, वहां पे आपका क्रिप्टॉन आता है इन ग्रुप नंबर 8 और पीरियड नंबर 4 के अंदर है. Which of these describe its electronic conjugation? आपकी इनमें से किसकी कॉन्जुगेशन ठीक है? अभी देखो हमने बेसिक कुछ सीखा था. टोटल क्रिप्टॉन जो है आपका एलिमेंट, उसके सबसे पहले बेटा आपको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए. देखो पहले हीलियम आता है, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर बेटा क्रिप्टॉन आता है, Kr क्रिप्टॉन. तो बेटा एक मैजिक नंबर होता है जिसके बेसिस के ऊपर आप ये सारी बातें याद कर सकते हैं. जैसे इसका एटॉमिक नंबर 2 में 8 ऐड कर दें, 10 में 8 ऐड कर दें बेटा 18 में 18 ऐड कर दें बेटा, उसके बाद 36. सो दैट इज द एटॉमिक नंबर फॉर द क्रिप्टॉन. तो 36 है इसका. आप पहले तो डायरेक्ट याद करके देखें. 36 बेटा किस में दिख रहा है? 2 8 10, 18 और 10 28, 36 39. देखो ये तो रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट पे चले. 2 हो गया, 2 8 10, 10 और 18, 28 और 8 36. सो दैट इज द करेक्ट. ये आपकी करेक्ट बन गई बेटा. नेक्स्ट में देखो 2 8 10, 28 6 34. तो उसमें बेटा 34 बन गया, तो वो भी बेटा आपकी रॉन्ग हो गई. इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है ये. What can you say about the chemical reactivity of the krypton? जैसे अभी हमने देखा इसकी fulfilled configuration है, so due to the fulfilled outermost shell configuration it is unreactive. ये कैसा होगा बेटा? ये unreactive होगा. तो ये unreactive है, noble gas है ये आपका. So that is all about today's lecture. Thank you.